Okay, जी, let us begin. तो कल हमारा चैप्टर 15 तक हो गया था, राइट? चैप्टर 16 टुडे। Yes. तो हमारा मेन टॉपिक था ग्रीफ काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग ग्रीफ. सो चैप्टर 16 इज द टास्क ऑफ मॉर्निंग. तो अच्छा, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ रिवाइज कर लेते हैं. कल क्या था, क्या निमोनिक्स हमारा था? Dabda. डाबडा. यस, एलेबोरेट इट प्लीज. Denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. वाओ, दैट्स द फोकस. गुड. सो क्या टास्क है? फील वॉट एवर इज देयर, small steps forward every day, no expectations, expression, remember and keep living, grow around the wound, when to get professional help. Chapter summary. Haji, who would like to volunteer? हाजी, कौन पढ़ेंगे? सर ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं पढ़ सकती हूँ. ओके. Chapter summary. Number 1. Grief demands that we work through the pain. Grief demands that we work through the pain. Number 2. It takes time to adjust to a life in which the loved one is missing. It's really tough. It takes time to adjust to the life in which the loved one is missing. Number 3. We need to find a way to keep the connection going with the loved one without their physical presence. We have to find a way that connection going with the loved one without their physical presence. Number 4, acceptance of the new reality means we can continue to engage with the things that matter to us. Whatever you feel, it's okay to feel that. Acceptance of the new reality means we can continue to engage with the things that matter to us. Whenever you feel it, whatever you feel, it's okay to feel that. Number 5, do not underestimate small steps and steady progress. हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स. बहुत तो सबका क्या सब रिफ्लेक्शन, जी, क्या रिफ्लेक्शन और शेयरिंग है सभी का टेकअवेज क्या है? And how do you connect it with your life or someone's life? acceptance of the new reality means we can continue to engage with the things that we have to do in life. We cannot stop. But inside whatever you are feeling, it's okay. We should not, disregard that. So that's what is my feeling. जी. Thank you, sir. ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू फाइंड अ वे टू कीप दैट कनेक्शन गोइंग विद द लव्ड वन विदाउट देयर फिजिकल प्रेजेंस. और हमारे सोसाइटी में, रिलीजन में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं जो इस कनेक्शन को रखती हैं कंटिन्यू. तो कैन एनीबॉडी रिकॉल कैसे होता है? हाँ जी. Whenever I miss or I feel like I lost my parents, my
most dearest one you can understand, when I've lost my parents, I keep talking to them. When I feel sad at times, when I miss them, I talk to them. I don't let them go away from, their physical presence is not there, but at least mentally they are there with me. That gives me encouragement. Even my better half, when he left, that with him also, whenever I feel any discomfort with any situation around me, I talk to him. I know the solution is with me, but at least I talk to him, I feel good. He at least, okay, he's listening to me, like that. His presence is जी there. Thank you, sir. जी तो जो हम लोग के ट्रेडिशंस हैं 13 दिन 10 दिन, सो ऑल दैट, एंड इवन कभी कभी वो गरुड़ पुराण पढ़ने का भी कहीं कहीं पर ट्रेडिशन रहता है, so all that helps कि कैसे it takes time to adjust, and वो it helps in healing, taking that time out. राइट। और कुछ याद आ रहा है किसी को? भाई जी, क्योंकि जी जब शरीर छोड़ते हैं लोग तो लोग उनके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। अगर लव्ड वंस, मतलब अगर किसी का स्पाउस या ऐसा होता, फिर मेरे एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने शरीर छोड़ा, तो फिर वो हमेशा उसके बारे में बात करती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से गायब हो गया तो मतलब अभी उसके बारे में, कई लोग ऐसा करते हैं तो फिर ज्यादा उनको लगता है। सप्रेस कर देते हैं कुछ लोग मेमोरीज को। हाँ, तो जैसा भी कल हमने पढ़ा था कि सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको एक वेंटिलेशन मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि हम जैसे अभी उनके बारे में सोच रहे हैं तो हमारे वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं, तो किस तरह के वाइब्रेशन हम चाहेंगे उन तक पहुंचे। अभी तो वो एक नई जिंदगी में खुश होंगे और हम यहाँ से दुख के वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो उनके लिए सही है क्या? तो फिर वी स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग पॉजिटिव, समथिंग गुड फॉर देम। जैसा कि निधि ने भी शेयर किया कि हम कुछ एनुअल सेरेमनीज भी करते हैं, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। और लास्ट पॉइंट, डू नॉट अंडरस्टिमेट स्मॉल स्टेप्स एंड स्टडी प्रोग्रेस। इसके बारे में कुछ? एक्सेप्टेंस के बाद ना क्या होता है सर, हम लोग छोटा छोटा स्टेप्स लेना शुरू करते हैं जिंदगी के तरफ, तो वो स्टेप्स को भूलना नहीं चाहिए। सोचते हैं कि नहीं बड़ा तो कुछ नहीं कर पाएंगे वगैरह, लेकिन छोटा छोटा स्टेप्स लेके अगर आगे बढ़ना चाहे तो वो काफी मदद करती है हमें। एकदम से बैठ नहीं जाना है, तो फिर और भी आप ग्रीफ में डूब जाते हो। छोटी छोटी कामों में खुद को व्यस्त रखना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। नेक्स्ट चैप्टर है द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। The pillars of strength are listed below: a relationship with the person who has died, a relationship with the self, expressing grief, time, mind and body limits, structure, focusing। हाँ जी, इसकी समरी कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ना चाहेंगे चैप्टर 17? ठीक है मंजीत जी, आ जाइए। We can rebuild a life after a bereavement with time, work, and persistence. Create a secondness, create new ways you can feel close to your loved one with the special place or memorial. Listen to your needs as much as you can along the way. There is no correct way to express grief. Drop any expectations about how much time you should spend grieving.
Wow, important. So how do you connect everyone? Create new ways you can feel close to your loved ones with a special place or memorial. एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि people associate this particular day with some good deeds, like to contribution to society in some way. तो उससे बहुत स्ट्रेंथ भी मिलती है. कुछ ऐसे तरीके कोई शेयर करना चाहेगा, क्या हो सकता है, या सोसाइटी में हमने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया? हाँ जी, श्राद्ध करते हैं, डोनेशन. जो चीजें उनको पसंद थी उसका वो डोनेट करना. राइट. जी. इवन लोग कुछ काफी बड़े बड़े काम भी करते हैं. जैसे सपोज कैंसर से सपोज किसी को कुछ हुआ, देन दे टेक सम बिग स्टेप टुवर्ड्स द रेमेडी ऑफ दिस थिंग, और एटलीस्ट मिटिगेटिंग दिस थिंग. तो कितनी अच्छी बात है कि वो एक उनका हायर कॉज में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरी एनर्जी को ही चेंज कर दिया. हाँ जी, अल्पना जी. सर एक सहेली है मेरी पास में नेक्स्ट ब्लॉक में, तो शी लॉस्ट हर हस्बैंड व्हेन ही हैड कैंसर एट अ वेरी अर्ली एज. She started going to cancer hospitals, and then she, give nice things to the small children who are suffering with cancer and all. I mean, she does this on a regular basis, and that has become her passion now. So she feels very good about it, that she's contributing something to heal them mentally somewhere. They are suffering, so कुछ तो खुशी दे पाती है जाके. ये this is a very nice way. राइट. और एक थर्ड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है जो कई बार वी फेल टू नोटिस, कि लिसन टू योर ओन नीड्स एज मच एज यू कैन अलोंग द वे. फिर लोग खुद को तो काउंट ही नहीं करते कि मेरा तो अब क्या ही फायदा जीने का, मैं तो हूँ ही नहीं. लेकिन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इस बारे में किसी का कोई रिफ्लेक्शन? क्या नीड्स होती हैं अपनी, कैसे उसको हम सेल्फ केयर कैसे करें? तो ये जो लाइफ दी है भगवान ने, लाइक अब हर एक वो एक साइकिल है जो कंप्लीट होगा. तो लाइक everyone has its own cycle, so in that way like self care is important, because अभी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि if there is no other one is not there, so we have to take care of ourselves. ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि जिम्मेदारियां हो सकता है और बढ़ गई हूँ, और हो सकता है कोई हमें केयर करने वाले थे, हमें खुद लुक आफ्टर करना है. तो इट इज रदर मोर इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर नीड्स. ऑल राइट. Now next topic is self-doubt. So there are 4 chapters in this. First is dealing with criticism and disapproval. कैसा लगता है जब क्रिटिसिज्म होती है तो? लगता है किसी को क्या? ओवर थिंकिंग शुरू होती है. यू स्टार्ट फीलिंग बैड. ब्लेमिंग भी शुरू हो जाती है. ओके. हाँ जी, who would like to read this chapter number 18? हाँ जी, go ahead. Okay.
So the first point says, learning the skills to deal with criticism and disapproval in a healthy way is a crucial life skill. We are built to care what others think of us. So telling ourselves that we don't care is not the answer. So many a times we do say that अच्छा हमें फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या बोल रहे हैं या फिर, but that is not the answer. People pleasing is more than just being nice to people. It is the persistent placing of others' wants or needs above your own, even to the detriment of your own health and well-being. So people pleasing is more than just being nice to people. It is the persistent placing of others' wants or needs above your own, even to the detriment of your own health and well-being. So what exactly people pleasing means is just not that you're trying to be nice to people. You're also not disregarding your own health and well-being. Understanding why some people are highly critical helps, because they have their own background story, their sanskar. So that also helps. Nurturing your own self-worth and resilience to shame. Nurturing your own self-worth and resilience to shame is both possible and potentially life-altering. Wow, काफी important है ये सब कुछ. So many good points. तो जनरली क्रिटिसिज्म जब होती है तो क्या क्या पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम अभी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं? जनरली क्या क्या होता है? द होल स्पेक्ट्रम ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. डिनायल भी हो सकता है कि भाई ऐसा तो है ही नहीं, हम तो ऐसे करते ही नहीं है. और क्या होता है? सर अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है सबको नॉर्मली, कि थोड़ा नाराजगी होती है, मेरे बारे में ऐसा नेगेटिव क्यों बोल रहा है. बट इफ आई स्टार्ट लुकिंग इनटू इट कि क्यों बोला मुझे ये बात, उसको अगर मैं मेरे अंदर जाके थोड़ा देखूं कि क्या देखा उसने इसलिए कहा, तो शायद इट बिकम्स इजी टू एक्सेप्ट थिंग्स. एंड सेकेंड वे इज, अगर मैं सोचूं कि वो उसका पार्ट है, जो कर रहा है उसका पार्ट है, ऐसा करके अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो भी इट हेल्प्स. बोथ वेज इट हेल्प्स. एक्सेप्टिंग माई going through myself, if I analyze, that also helps. And if I take it like that कि हाँ ठीक है, इसने कहा तो इसकी बात है, मेरी तो ये प्रॉब्लम नहीं है. दोनों तरफ से ही हेल्प करता है. क्या ये पॉसिबल है जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हमारी, उनकी इंटेंशन तो अच्छी हो? Yes. हो ही सकता है. बस तरीका गलत है. They want a better version of ourselves. हाँ. तो वो मेरा फर्स्ट पॉइंट उसी के साथ रिलेटेड था कि अगर वो अच्छे तो के लिए हम तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, राइट. जैसे शायद रहीम या कबीर ने कहा भी है, निंदक निरे रखिए. तो कैन वी चेंज दैट पर्सपेक्टिव? और कोई डिसअप्रूव करे तो कैसे हम डील करेंगे? या पास्ट में कभी हमारे संग ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, क्या उसे हम अपनी सेल्फ वर्थ तक ले जाते हैं? बोलू सर. ऐसा हुआ है, किसी ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया मुझे, तो एट फर्स्ट आई यूज्ड टू डिनाई, व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस, व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस. बहुत नाराज होता था, नाराजगी होती थी. तो फिर मैंने शुरू किया देखने में, अपने अंदर झांकना शुरू किया कि क्यों बोल रहा है ये बात. तो देखा थोड़ा थोड़ा कहीं पर मुझे करेक्शन करना है ये चीजों को,
शायद that's what he wants, that is why he is saying this. कुछ पॉइंट्स देखा मैंने कि है तो उसको करेक्ट किया. I took care of those points and then saw the good result of it. निधि, क्या लगता है आपको? आजकल इजी लगता है, कोई कुछ भी कहे तो पहले सुन लो क्यों कह रहा है, फिर उसको देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं. अच्छा होगा तो ले लेते हैं, नहीं अच्छा होता तो छोड़ देते हैं. जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एट वर्क प्लेस एंड एवरीवेयर. यस, अभी जैसे क्रिटिसिज्म सुनने में मुझे बहुत मजा आता है. इनफैक्ट ऐसा लगता है अच्छा, जैसे जस्ट एक इंस्टेंस में शेयर करूंगी. मेरे सीनियर डिलीवरी पर्सन को इन द ऑफिस ही गॉट टू नो कि आई डू मेडिटेशन. तो उनको तो एवरी टाइम जब हम मीटिंग हो रही है या कहीं पे, तो ही वुड रेस कि क्या स्नेहा तुम ये सब मेडिटेशन वगैरह कर रही हो, ये तो बाद में, अभी अभी क्यों कर रही हो ये सब, अभी मत करो, एंड बी अग्रेसिव एंड डू दिस. तो धीरे पहले मैं सुन रही थी, समझना चाहती थी कि पहले खराब लगता था कि अच्छा डज ही थिंक दैट आई एम डूइंग इट बिकॉज, वो क्वेश्चनिंग अगेन अब फर्दर अपना कि इज इट बिकॉज दैट I have gone through something, because generally people start getting into that belief कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ होगा इसीलिए ये कर रही है या कुछ. तो पहले थोड़ा अफेक्ट करता था and I used to keep thinking, लेकिन अभी धीरे धीरे I see कि I have left it and eventually it so happened कि when we have one-on-one discussion, he would say कि अच्छा अभी मैं ये देख रहा हूँ, वाबी साबी पढ़ रहा हूँ, इकिगाई कर रहा हूँ, बताओ कौन सा करना है. तो he started interacting and discussing about these things. So I felt कि अभी वो then I realized कि वो when there can be things that I have to probably work upon. Second angle can be that somebody is missing that and probably could be saying कि अच्छा I am still not doing all that, or maybe. So human behavior is complex. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. हाँ. जी, और सभी के मन में क्या आ रहा है? कोई अपना पर्सनल इंसिडेंट एट वर्क प्लेस, इन फैमिली और समवेयर? सर, जैसा इन्होंने अभी कहा कि इनके वर्क प्लेस पे ऐसे इनके बॉस के साथ में ऐसी बात हुई, ऐसे ही मेरा बेटा मुझे कई सिचुएशंस में कई बार बोलता है कि मम्मा आप मेडिटेशन करना छोड़ दो, क्योंकि आप जब टाइम आता है तब आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो बेकार है करना, क्यों कर रहे हो. तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगता था, बहुत हर्ट होती थी मैं कि ये ऐसा बोल रहा है. फिर मुझे लगा, फिर बाद में मतलब गुस्सा भी आता था उसके ऊपर कि वो मुझे हर्ट करने के लिए इंटेंशनली बोल रहा है. लेकिन फिर जब मैंने उस बहुत सोचा और क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में लिया, तो मेरे को लगा कि शायद कहीं पे मैं मिस कर रही थी कोई चीज और मैं रिएक्ट एक्चुअल में कर रही थी, और उससे मैंने अपने आप में भी कोई बुरा नहीं महसूस किया कि मेरा मेडिटेशन बेकार है. मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं तो उस रास्ते पे हूँ और धीरे धीरे एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ रही हूँ. तो मैं चीजों को शांत होकर के ग्रेजुअली ले रही हूँ. कभी रिएक्ट करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ. 10 में से 7 बार रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, 3 बार रिएक्ट कर रही हूँ. तो खुद को ही समझाया कि ठीक है, वो भी जो बोल रहा है वो ठीक है, और मैं भी अपने रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ. जी, बिल्कुल. तो इट टेक्स लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, रीफ्रेमिंग, रिफ्लेक्शन कि हम कैसे वो प्रोसेस को चेंज करें. और क्रिटिसिज्म जनरली हेल्प्स. आप उसे बस सर पे हावी ना होने दें तो इट जनरली हेल्प्स. आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या एविडेंस है, ये कह रहे हैं, क्या ये
कुछ इसका आधार है या ऐसे ही है ये बात? थोड़ा बहुत तो आधार होगा ही, कुछ तो बात होगी, किसी बात की तो मीनिंग मेकिंग होगी। ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19, द की टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। To build confidence, go where you have none. Panic zone, stress zone, comfort zone. Why you don't need to work on your self-esteem. Ditch the positive affirmations. Toolkit, changing your relationship with fear to build confidence. हाँ जी, कौन पढ़ेंगे समरी? वैशाली जी। Chapter summary. First point, confidence cannot grow if we are never willing to be without it. Second, to build confidence, go where you have none. Repeat every day and watch your confidence develop. Third point, confidence is situation specific, but what you keep as you move around is the belief that you can tolerate the fear as confidence grows. Fourth point, you do not need to overwhelm yourself with your worst case scenario. Start with small changes. Fifth point, along the way, be your own coach, not your worst critic. And sixth one, courage comes before confidence. Interesting. क्या लगता है, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं सभी अपने सिचुएशंस के साथ? सर ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा बोलेंगे, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस गो वेयर यू हैव नन, ये फर्स्ट लाइन का। ये सेकेंड भी मुझे समझ नहीं आया। ये पॉइंट थोड़ा बोलेंगे सर, गो वेयर यू हैव नन, रिपीट एवरीडे वो तो समझ गई, लेकिन ये गो वेयर यू हैव नन का मतलब क्या? जी, तो इसका मतलब पढ़ते हैं, बताइए, पढ़िए। Confident is not the same as comfortable. One of the biggest misconception about becoming self-confident is that it means living fearlessly. The key to building confidence is quite the opposite. It means we are willing to let fear be present as we do the things that matter to us. When we establish some self-confidence in something, नहीं, it अभी feels- इससे समझ में आया, फर्स्ट पैराग्राफ से अच्छा। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, हाँ जी। कॉन्फिडेंस, हाँ जी बताइए। क्या अभी तक क्लियर हुआ इसमें? तो मतलब टू बिल्ड कॉन्फिडेंस गो वेयर यू हैव नन, मतलब जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं भी है, so even if you have fear, nevertheless go ahead. Does एग्जैक्टली, that mean? हाँ, यस यस यस। और वैसे प्रैक्टिकली भी ये बात सच है, कॉन्फिडेंस तो आता ही आएगा ही तब ना जब कुछ हमने ऐसी जगह कुछ ऐसा किया जहाँ पे कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मान लीजिए घर में मिरर के सामने बोलना है देख के, तो उसमें क्या बड़ी बात है, बोल ही लेंगे। लेकिन कहीं स्टेज पे जाके थोड़ा सा बोल दिया 1 मिनट, जहाँ था ही नहीं कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इसके साथ? कर तो पा रहे हैं, बोलेंगे नहीं? Yeah, sure. Totally, Bhaiji, totally. Totally जी, we can regarding कैसे? connect. Totally connected. बताइए फिर। एक अभी बोल जब सकते मैं हो। हाँ दीदी बोलिए। हाँ दीदी। ये ग्रुप ज्वाइन किया तभी मुझे
कुछ रीड करने का या कुछ बोलने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस 0 था। तो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। एग्जैक्टली। तो वैशाली जी बोलते नहीं थे बिल्कुल पहले। तो अभी तो मतलब इनिशिएटिव ले लेते हैं खुद से ही, प्रोएक्टिविटी। तो ये चेंज है और ये कॉन्फिडेंस भी अच्छा चेंज है। हाँ जी, कोई और शेयर कर रहे थे? इसका क्या मीनिंग है? ये बहुत जी बताइए। सॉरी भाई जी, उसके आगे जो उन्होंने बोला है कि फियरलेस, और कोई शेयर कर रहा है? नहीं आप करिए। फियरलेसली बोला ना उन्होंने कि कॉन्फिडेंट होना मतलब फियरलेस होना ये जरूरी नहीं है, क्यों या फिर वो नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है ना उन्होंने। फियरलेसली कुछ भी आप करते रहो, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा ही ना। फियर एक्चुअली हेल्प्स। हर एक चीज का अपना एक फंक्शन है, कुछ ना कुछ। फियर नहीं होगा तो फिर हम कुछ करने का रिस्क असेसमेंट ही नहीं करेंगे ना। कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड फियर, वो सब कुछ होना चाहिए। ओके, इसका क्या मीनिंग है? बी जी रश्मि जी बताइए। नहीं सर, यहाँ पर कहा गया है बिलीव दैट यू कैन टॉलरेट द फियर एज कॉन्फिडेंस ग्रोज। आपने वो मार्क किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितना दूर तक हम टॉलरेट कर सकते हैं फियर को, वहीं पर कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। और वो रादर इट विल प्रूव दैट हाँ आई कैन टॉलरेट फियर अप टू दिस लेवल व्हेन आई हैव कॉन्फिडेंस। जी। And how do you understand this point? Be your own coach, not your worst critic. Anyone? It's a nice point. Can I say, sir? हाँ जी बताइए। बी योर ओन कोच नॉट योर वर्स्ट क्रिटिक। नॉर्मली क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम ना खुद को ब्लेम करना शुरू करते हैं, खुद का क्रिटिसिज्म करना। मैं शायद बहुत डरपोक हूँ, मेरे को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये सारा बहुत कुछ आता है मन में। अगर कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, बहुत लो रहेगा, तो नहीं रहेगा तो उस समय खुद को अपना कोच बनो, मतलब खुद को इनकरेज करो कि नहीं मुझे ये आता है, ये आता है, सो आई कैन विद दैट स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को हम आगे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्रिटिसाइज नहीं करना है, करने से और भी डाउन हो जाता है लेवल। खुद को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी और को भी नहीं, खुद को भी नहीं। और साथ ही साथ अपना कोच बनो, खुद को खुद एनकरेज करो। थैंक यू सर। जी, कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? I think one thing is extremely critical here. Tanu, will you call up daddy and tell him we are back home? Am I at all in a position to coach myself? ये बहुत important. आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। Is it audible now? Yes. Okay. See what I'm saying. Two factors, two important points to be noted here is point number one, that am I at all in a position to coach myself? This is point number one. And point number two is जहाँ पे author कह रहे हैं कि आप अपना critic ना बनो. See, criticism is not always negative. Criticism can be considered as a feedback also. So probably what author is saying कि अपने आप को ऐसा भी criticize मत करो कि it takes you to a domain where you do not want to trade. Rather, it can be a positive criticism. Figure out that what is missing and what you can do to connect that missing link or come over that missing link. These are my takeaways, my thoughts. जी,
Yes. So we need to work on our abilities to coach oneself, and ability to ask right kind of question to self कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता. अगर हमारी सेल्फ क्रिटिसिज्म ये बोल रही है, सेल्फ टॉक ये आ रही है बात कि यू कैन नॉट डू दिस, तो वाई, क्यों नहीं, वाई नॉट. या इस तरह से पूछते पूछते आगे बढ़ते जा सकते हैं हम. ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे. चैप्टर नंबर 20, यू आर नॉट योर मिस्टेक्स. बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेल्योर. बाउंसिंग बैक को हम क्या कह सकते हैं? वन वर्ड फॉर बाउंसिंग बैक. रेजिलियंस. क्या बात है, वाह. ठीक है जी, कौन पढ़ेंगे? हाँ जी, मंजित जी. Most self-doubt is linked to the relationship we have with failure. Second point is how other people respond to your failure does not say anything about your own personality or worthiness. And number 3 point is the sting of failure can drive us to numb or block emotion. So even if you don't initially notice the feeling, you can notice the blocking behaviors. Next point is be your own coach and turn failure into learning experience as you keep moving forwards in line with what matters most to you. The last point is the emotional response to failure can be overwhelming, so take your time. काफी इम्पोर्टेंट है ये, काफी यूजफुल भी है जी. So how do you connect, all of you connect with this? So how can we redefine our relationship with failure? Yeah, like we started criticizing ourselves first. So वो जो चीज है मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म, पहले तो उससे बचना है, और फिर क्या रिलेशनशिप है सेल्फ डाउट का विद द फेलियर, वो चीज समझ में आ सकती है. तो फेलियर को रिफ्रेम करते हैं. फेलियर को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो थोड़ी सी लिस्ट बनाते हैं. फेलियर इज फीडबैक. फेलियर इज फीडबैक, यस. व्हाट एल्स? Not meeting expectation. Failure is not meeting expectations. Not meeting the expectation which we expected. Both ways it can be, others and ourselves also. Failure is a learning opportunity. Failure is like our experience. Right. Failure is actually an opportunity, it's a big opportunity that you can improve yourself. And anybody who comes back with any kind of feedback, any kind of criticism, आपको खाली एक mindset change करना है that this criticism is coming in your way, that the universe is coming to you with its own way of empowering you to become a better version of who you are right now. So that's how I welcome criticism. Whether it is good or bad doesn't matter. Good or bad is our own meaning making of it. Whatever is coming in your way, just accept it. Failure is also opportunity to work on plan B. Yeah, obviously. It's an opportunity basically.
जी इजी, आगे बढ़े। लास्ट चैप्टर नंबर 21, बीइंग एनफ। बीइंग एनफ को हम क्या कह सकते हैं और वन वर्ड में? self-sufficient, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एफिकेसी, resourcefulness, painting the picture of self-acceptance, accepting all of you. So as you can see, बहुत सारा स्टफ है इन चैप्टर्स में जो आप रीड कर सकते हैं. Finding your compassionate side. जी, लास्ट समरी ऑफ टुडेस 21. कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं सर? हाँ जी. There is a misconception that self-acceptance will cause laziness, complacency, and lack of drive. In reality, the research shows us that those who develop self-acceptance and learn to be self-compassionate are less likely to fear failure and more likely to try again when they do fail. Self-acceptance is not the same as passively accepting defeat. Self-compassion often involves taking the more difficult road that is in your best interest. Oh, great. तो एक्सेप्टेंस का मतलब कई बार ये हम समझते हैं मिसकंसेप्शन की कुछ चेंज नहीं करना है, मतलब एक्सेप्ट कर लो जो है जैसा है. दैट्स व्हाई दे से कि इट मे कॉज लेजीनेस, कॉम्प्लेसेंसी एंड लैक ऑफ ड्राइव. जबकि इसका अपोजिट है, सेल्फ कंपैशनेट होंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी तो हम ज़्यादा रेजिलिएंट होंगे, हम आगे एंड अगेन ट्राई कर सकते हैं. वी कैन एक्सेप्ट अवर ओन फेल्यूर एज वेल. तो कुछ याद आ रहा है, कुछ कनेक्ट हो रहा है पर्सनल लाइफ से? कोई ऐसा इंसिडेंट जो सेल्फ कंपैशन होने की वजह से आपने एक्शन लिया और आप सेल्फ क्रिटिक होते तो एक्शन ना लेते? सर बोलू? हाँ जी. आई वाज लुकिंग एट यू ओनली. जब ये आपकी पढ़ाई की बात आई मेरे सामने, उससे पहले आई वाज थिंकिंग क्या करूं मैं आज, अभी क्या करना चाहिए, इसको लेना चाहिए क्या? पहले तो अच्छी तो चल रही हूँ मैं, बैठे आराम से लाइफ चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, टाइम अच्छी तरह गुजर रही है. तो फिर किसी ने मुझे समझाया ये करना चाहिए, तो फिर समझाने के बाद सर ने समझाया मुझे कुछ, तो वो लगा कि ठीक है, चलो देखते हैं कुछ अच्छा करके. और आई ऑलवेज हैव ऑल थ्रू माय लाइफ, इफ आई हैव लर्नड एनीथिंग विथ दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि हाँ कुछ अच्छा करते हैं, तो ये एक्सेप्टेंस में एक होता है. लेजीनेस का अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती तो मैं पढ़ाई नहीं करती, अभी आराम से बैठ के कुछ अपना दूसरा कुछ करती, तो नहीं, सोचा कि चलो करते हैं. तो ये तो सेल्फ एक्सेप्टेंस. इसमें तीन बातें हैं. हाँ. एक ये कि आपने अपने आप को कुछ समझाया, मतलब सेल्फ काउंसलिंग की, ठीक है. यस. एक किसी ने आपको समझाया या मैंने आपको समझाया. इन दोनों को हम साइड में हटा देते हैं क्योंकि किसने समझाया है तो कोई इन्फ्लुएंस भी कर सकता है. तीसरी बात लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस इस ड्यूरेशन में कैसा रहा, क्या आपको अब लगता है कि यस इट मेक सेंस? It makes sense, sir. I learned so many things last 3 months, 2.5 months it is now. So I've learned a lot of things in between. So naturally, it is for good only. Whatever decision was taken, it was for good. And of course, when I thought of the outcome, then only I joined. That okay, कुछ नहीं तो
कुछ तो अच्छा होगा. I know that पढ़ाई is always good. It always gives you positive things. So it's okay. The decision was good only. इन्फ्लुएंस नहीं था सर, ये अंडरस्टैंडिंग था. आपने जो समझाया मुझे वो अंडरस्टैंडिंग थी, और मैंने जो That's खुद very को समझा important. वो भी एक्सेप्टेंस थी. मतलब वो भी ये अंडरस्टैंडिंग ही थी कि हाँ ये होगा. क्या बात है, वाह. हाँ जी, कोई और पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कोई इसमें? लास्ट चैप्टर 21. लास्ट वाला पॉइंट के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये. सेल्फ कंपैशन ऑफन इन्वॉल्व्स टेकिंग द मोर डिफिकल्ट रोड that is in your best interest. और डॉक्टर जोली इसमें ने ही मोटिवेशन को भी जिस तरह डिफाइन किया था वो इसके कनेक्शन में ही है. कैसे? सेल्फ कंपैशन कैसे ये बात है कि टेकिंग द बेस्ट पॉसिबल रोड जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है, इवन द रोड इज डिफिकल्ट. It will give you that confidence जी. and मतलब जो अपना सेल्फ बिलीफ है इट विल मतलब उसको मींस इट वो रखेंगे तभी यू कैन बी सेल्फ कंपैशनेट. Yes. It can. She talks about mental health defense players. So this is one of that. If we look at it that way, self compassion. Right. मतलब taking care of oneself. हाँ जी. और कोई कुछ और शेयरिंग करना चाहता है अदर देन दिस? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? सर स्पिरिचुअल पाथ जब हमने अडॉप्ट किया था, आई वाज इन अ एब्सोल्यूट डिफरेंट लाइफस्टाइल. It was very difficult, very, very difficult for me to follow the accurate path, what was told to us to follow. So I had at the beginning, I had a notion अंदर में कि नहीं मुझे ये देखना है, ये क्या है. वो उत्सुकता जो अंदर से I created कि मुझे जानना है, तो उसके लिए करना है. अच्छा ठीक है करो. Then it became my habit. उसको लिया किया, वो डिसीजन लिया, हाँ करना है, देखेंगे क्या होगा, देखा जाएगा, थोड़ा फॉलो करके देखते हैं. वो फर्स्ट में आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि फैमिली से कोई किसी ने कहा कि फैमिली से बहुत सारा कोई बोलता है कि क्यों. अभी ये सिस्टर स्नेहा शेयर कर रही थी, ऑफिस में उनको पूछा जाता है. मेरे फैमिली में कोई इधर उधर किसी में भी ये नहीं है कि कोई मेडिटेशन वगैरह इस फील्ड में है, स्पिरिचुअल पाथ में. सब कोई मुझे बोलता है छोड़ दो, तुम कैसे इसमें चली गई. I said, I know the maza, so you won't understand. Let me be here, take the benefit out of it. That's all. तो ऐसा करके उनको उल्टा समझा के चल रही हो, खुद को समझा के. So it is like मतलब being self compassionate. Yes, पर अपने बेनिफिट के लिए, अच्छाई के लिए जो कुछ भी कर रही है. That's all. कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और हम सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिली के नाम पे या लव्ड वंस के नाम पे कि उनकी वजह से मैंने ये सेक्रीफाइस कर दिया, तो मैंने अपनी इच्छा को छोड़ दिया. तो वो सेल्फ कंपैशन नहीं है. तो अपने गोल्स को भी अचीव करना, भले वो पाथ थोड़ा डिफिकल्ट भी है, कंफर्ट जोन के बाहर है. डिफिकल्ट तो नहीं है, कंफर्ट जोन के बाहर भी थोड़ा हो सकता है, और इवेंचुअली एवरीवन एग्रीज. बस आपके खुद की क्लैरिटी होनी जरूरी है, बाकी सब एग्री हो जाते हैं. वैसे भी नोबडी
no one cares about anyone actually. Everybody cares about themselves. So we should also, or you should also. अपने केयर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Yeah, see, there's a thin line between compassion and इसको हम क्या बोलते हैं, compromise. जी. You know, you need to catch yourself. क्या आप compromise कर रहे हो या compassionate हो? Often, at least I can tell about myself that sometimes I find it very difficult to identify these two areas. And after some time, I discovered that compassionate is something where I'm actually enjoying enlightenment. And compromise is something जहाँ पे आपको enlightenment की feeling आएगी ही नहीं. You'll feel more like a victim of circumstances or something similar to that. जी. तो जैसा कि अगर हमने बात की थी मैनिफेस्ट फंक्शन, तो इस ग्रुप का ये है कि हम सब लोगों ने मिलकर रीडिंग की समरी वगैरह थोड़ा पढ़ा, और लेटेंट फंक्शन इसका ये है कि आप सब एनकरेज हो पढ़ने के लिए, और इतनी इम्पोर्टेंट बुक हम पढ़ें, सेल्फ स्टडी भी करें घर पे, और फिर आगे हम शेयर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. तो आज इतना ही करते हैं. एनी क्वेश्चंस? थैंक यू बाजी. Thank you, sir. थैंक यू जी, वेलकम. Thank you. Well, sir. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू, वेलकम. God bless you, buddy. Thank you, sir. थैंक यू. सी यू.